دنیا کے 3 طاقتور مسلم ممالک ایک ساتھ مل کر ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 7 اگست 2026 کو سعودی عرب کے شہر مکہ سے۔ یہاں ایک بہت ہی خاص اور بڑی ملاقات ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایک ساتھ موجود تھے۔ ان کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی تھے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد ان تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے ایک انتہائی اہم دستاویز پر دستخط کیے، جسے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اگر تینوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوا تو اسے تینوں پر حملہ مانا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کے مغربی ممالک کا نیٹو اتحاد کام کرتا ہے۔ یعنی صاف لفظوں میں کہے تو یہ 3 طاقتور مسلم ممالک اپنا ایک نیٹو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دوستو اس تاریخی معاہدے کی سیاہی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی کہ ٹھیک 48 گھنٹے بعد یعنی کہ 9 اگست کی صبح سب کچھ بدل گیا۔ یمن کے بارڈر کے بالکل قریب اور بحیرہ احمر ریڈ سی کے کنارے واقع سعودی عرب کے شہر جازان میں ایک زبردست حملہ ہوا۔ یہ حملہ سعودی عرب کے سب سے اہم آئل کمپنی آرموکو کی ایک ریفائنری پر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی۔ اس حملے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد یمن کے حوثی گروپ کے ملٹری ترجمان یحییٰ سری ٹیلی گرام پر آئے اور اس حملے کی مکمل ذمہ داری قبول کر لی۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ حملے ان ڈرونز نے کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ دراصل اس بات کا بدلہ ہے جو پچھلے دنوں سعودی ڈرونز نے یمن کے علاقہ سعدہ اور حجہ پر کیا تھا۔ اب یہاں سب سے بڑا اور اصلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 2 دن پہلے پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم کسی پر حملہ ہوا تو تینوں پر حملہ مانا جائے گا۔ تو جب سعودی عرب پر حملہ ہو گیا تو کوئی اور بڑی ریاکشن کیوں نہیں آیا؟ نہ کوئی ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی، نہ ترکی کے جنگی جہاز اڑتے ہوئے نظر آئے، اور نہ ہی پاکستان نے اس ڈیل کے تحت اپنی فوج کو حرکت میں لانے کی بات کی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ مکے والا معاہدہ ایگریمنٹ کس کام کا تھا؟ اس الجھن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ فروری کے آخر میں شروع میں ہونے والی اس جنگ کو سمجھنا ہوگا، جس نے ان تینوں ملکوں کی سیکورٹی کی پوری گیم اور سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے خلاف جو حملے شروع کیے تھے، انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس، فوجی ٹھکانوں اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تھا۔ اب ظاہر ہے ایران بھی چپ کر کے نہیں بیٹھا، اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکی بیسیز پر زبردست حملے کیے۔ لیکن اس سب میں سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ اس جنگ کی آگ ان خلیجی عرب ممالک تک بھی پہنچ گئی جو ایران کے بالکل پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بحرین پر میزائل گرے، وہاں کے رہائشی علاقوں اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ 17 نامی علاقے میں ایک ڈرون حملے سے درجنوں عام شہریوں کے زخمی ہونے کی خبر میں بھی آئی، اور اسی جنگ کے دوران سعودی عرب کو بھی براہ راست ایرانی حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہیں دوستو دوسری طرف ایران کے ساتھی یعنی حوثی بھی لگاتار سعودی عرب کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تو جازان کی ریفائنری میں ہونے والا حالیہ حملہ کوئی پہلا اور اکیلا حملہ نہیں تھا، بلکہ پہلے سے چل رہی ایک لمبی جنگ کی ایک کڑی تھی۔ ان سب حالات کی وجہ سے دنیا کے تیل کی تجارت کا سب سے اہم راستہ، جسے آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں، وہ پچھلے کئی مہینوں سے لگ بھگ بند پڑا ہوا ہے۔ دنیا کا تقریباً 20% تیل عام طور پر یہیں سے گزرتا ہے۔ اب وہاں بحری جہاز رکے ہوئے ہیں، کام کرنے والے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور پوری خلیجی معیشت اکنومک زبردست پریشر میں ہے۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے خود کو سعودی عرب کی جگہ رکھ کر سوچئے۔ آپ کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جن کے پاس سب سے زیادہ تیل ہے، لیکن آپ کے اور آپ کے پڑوسیوں کے سر پر مسلسل میزائلیں گر رہی ہیں۔ وہ سمندری راستہ جہاں سے آپ کی سب سے تگڑی کمائی ہے، وہ مکمل طور پر ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اکیلے تو لڑ نہیں سکتے۔ پچھلے 70 سالوں سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے فوراً امریکہ کو فون کر دو
1940 की दिहाई से लेकर अब तक अमेरिका ही इन अरब ममालिक की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जामिन और मुहाफिज रहा है। उसी ने जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी फौजी अड्डे, उनके बहरी बेड़े और उनके दिए गए हथियारों पर ही अरब ममालिक की पूरी सिक्योरिटी डिपेंड होती थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त पहले अमेरिका पर से ही भरोसा बिल्कुल टूट गया। यह भरोसा तब हिला जब सितंबर 2025 के आसपास हालात खराब हुए और इजराइल ने कतर पर हमला किया। इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को इसलिए परेशान कर दिया क्योंकि कतर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा एयर बेस मौजूद है। अरब ममालिक ने सोचा कि अगर अमेरिकी फौज को इतनी बड़ी मौजूदगी के बावजूद कतर पर हमला हो सकता है तो फिर अमेरिका की इस सिक्योरिटी की गारंटी का आखिर क्या फायदा। और सच्ची बात यही है कि ईरान ने अब पूरा गेम ही बदल कर रख दिया है। जब किसी मुल्क को अपनी सबसे बड़ी सिक्योरिटी पॉलिसी पर ही शक होने लगे तो जाहिर है वो नए दोस्त, नए ऑप्शंस जरूर तलाश करेगा। यही वजह है कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक आपसी दिफाई मुआहिदा साइन किया था। आप उसे मौजूदा मक्के वाले मुआहिदे का एक छोटा वर्जन या ट्रेलर समझ सकते हैं। इसके बाद कई महीनों तक तुर्की को भी साथ मिलाने की कोशिश चलती रही और बिल आखिर ये तीनों मुल्क एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुके हैं। इस मुआहिदे की सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन तीनों मुल्कों की ताकत बिल्कुल एक जैसी नहीं है, बल्कि सब अलग अलग चीजों पर मेज पर लेकर आए हैं। सऊदी अरब के पास बेपनाह पैसा है। वो इस डील के बदले तुर्की और पाकिस्तान से हथियार खरीदने और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग करने में मदद कर सकता है। सऊदी अरब ही इस पूरी डील का मरकज है क्योंकि वो कई सालों से हौसी और ईरानी हमलों के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। ईरानी हमलों ने तो ये भरम भी तोड़ दिया था कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात जाहिर करती है कि तुर्की की नेटो की दूसरी तरफ सबसे बड़ी फौजी ताकत है। पिछले 10 सालों में तुर्की ने अपने हथियार और ड्रोन्स बनाने की इंडस्ट्री में कमाल की तरक्की की है। कभी बड़ी पैमाने पर हथियार इंपोर्ट करने वाले तुर्की आज दुनिया का सबसे बेहतरीन और मशहूर ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस डील में तुर्की अपने जंगी तजुर्बा, अपने बेहतरीन दिफाई हथियार और सिक्योरिटी की ताकत को लेकर आता है। अब मज़े की बात तो यह है कि तुर्की को अपनी हिफाजत के लिए इस मुआहिदे की ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही नेटो का मेंबर है और उसे अमरीकी न्यूक्लियर हथियारों की सपोर्ट भी मिली हुई है। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान मक्का इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके लिए सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं बल्कि ताकत और असर व रसूख बढ़ाने का मामला है। वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल मुसलमानों का कोई ना कोई फौजी इत्तिहाद ज़रूर बनेगा और तुर्की इस आने वाले वक्त में अपना एक बड़ा मकाम बनाना चाहता है। वो मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक खुद को एक बड़े लीडर के तौर पर पेश करना चाहता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और अहम मुल्क पर, और वो है पाकिस्तान। यानी यह मामला सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है और दिलचस्प है कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिसके पास एटमी बम यानी कि न्यूक्लियर हथियार है। सालों से मिडिल ईस्ट में यह बहस चल रही है कि चूंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत सी फंडिंग सऊदी अरब की तरफ से आई थी तो क्या ज़रूरत पड़ी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे पाकिस्तानी अफसरान ये साफ कह चुके हैं कि उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी सिर्फ इंडिया के जवाब में बनाई गई थी, उसे ईरान या इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। यह बात सुनकर अक्सर लोग कहते हैं कि फिर सऊदी अरब को पाकिस्तान को साथ मिलाने का फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान अपने साथ क्या ला रहा है। दरअसल बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल सियासत में कई बार जानबूझकर कुछ चीज़ों को साफ ना करना भी एक बड़ी हिकमत अमली होती है। पाकिस्तान को खुलेआम ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि सऊदी अरब को उसकी न्यूक्लियर सपोर्ट हासिल है क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर का सऊदी अरब के साथ खड़े होकर मुश्तरका दिफाई मुआहिदा साइन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस एक कदम से ईरान की सारी कैलकुलेशन पर असर पड़ सकता है। माहिरीन इसे सऊदी सेंट्रिक
डिस्टेंस का नाम देते हैं, यानी उसे यूं समझिए कि तुर्की और पाकिस्तान की फौजें मिलकर सऊदी अरब को मजबूत करेगी और बदले में उन्हें पेट्रोल, डॉलर और सऊदी पैसा मिलेगा। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि जब मुआहिदे में लिखा था कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, तो फिर जाजान के हमले पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? नेटो का भी यही उसूल है, लेकिन नेटो के 70 साल तारीखी में भी यह कानून सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है और वह था 9/11 का हमला। इस हमले में अमेरिका की ज़मीन पर 3000 लोग मारे गए थे और यह हमला इतना वाज़ेह था कि उसमें कोई शक नहीं था कि यह जंग का ऐलान है। जब टैंक बॉर्डर पार कर रहे हो या दारुल हुकूमत पर मिसाइल गिर रही हो, तब ऐसी मुश्तरका दिफाई कानून लागू होते हैं। लेकिन 9 अगस्त को जाजान में जो हुआ वो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। एक ड्रोन से तेल की रिफाइनरी पर हमला किया गया जिसमें ना कोई इंसानी मरा और ना कोई जख्मी हुआ। आग भी कुछ घंटों में बुझा दी गई और हमले की जिम्मेदारी भी किसी मुल्क ने बाकायदा नहीं ली, बल्कि एक नॉन स्टेट ग्रुप हौसी ने ली और उसे एक पुराने हमले का जवाब बताया। आजकल के मॉडर्न जंगों का यही सबसे बड़ा मसला है कि सब कुछ साफ और सीधा नहीं होता। समझदार दुश्मन हमेशा ग्रे जोन में खेलते हैं, यानी हमला ऐसा करो कि जंग का ऐलान भी ना करना पड़े और नुकसान भी ना हो। अब ऐसे गोल मोल हमले के जवाब में तुर्की और पाकिस्तान के लिए सीधा अपनी फौजी सऊदी अरब भेजना और जंग में कूद पड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्या तुर्की सिर्फ एक रिफाइनरी में लगने वाली आग की वजह से अपने जंगी जहाज भेज देगा? वो भी तब जब आग लगने की असल वजह आज़ादाना तौर पर कंफर्म ना हुई हो। तो जाहिर है मामला इतना सीधा नहीं है। इस बात को ईरान, हौसी, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान सभी अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए इस डील का असल टेस्ट तो शायद अभी शुरू हुआ ही नहीं है और इसका असल इम्तिहान, असल एग्ज़ाम आने वाला वक्त में ईरान ही लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान को शामिल किए बगैर ऐसा कोई मुस्लिम नेटो बनाना कामयाब हो सकेगा? क्या इस मुआहिदे के बाद ईरान अपने हमले बंद कर देगा या डर जाएगा? आप सब लोग इस ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह मिडिल ईस्ट की खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल आबिद नदवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।